Hello everyone, I hope you all are doing great. So, your board exams have been scheduled according to the CBSE and your biology exam is scheduled on 16th of March. So, before that, we will cover up all the syllabus that is left. So, let's get started with our next chapter, that is molecular basis of inheritance. Moving forward, in this chapter, we will basically discuss about what is DNA, RNA, translation, transcription, packaging of DNA, histone octamers, and DNA replication, and many more. Okay, so let's get started with our first topic, that is what is DNA. What is the full form of DNA? DNA is a deoxyribonucleic acid. Okay, it is a double helical structure. ये एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, मीन्स यहाँ पे दो हेलिक्स प्रेजेंट होती हैं, दैट इज़ वन इज राइट हैंडेड एंड द नेक्स्ट वन इज लेफ्ट हैंडेड, एंड दैट वाज क्रैक्ड बाय अ वॉटसन एंड क्रिक बेस्ड ऑन द एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी रिजल्ट्स. ओके, एंड दिस मेन मॉडल ऑफ डीएनए विच इज़ गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक, ये एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के रिजल्ट्स पे बेस्ड है. एंड इट इज़ आस्क्ड मेनी टाइम्स इन द एग्जामिनेशन ऑल्सो दैट हु प्रपोज दिस मॉडल और एक्सप्लेन द मॉडल ऑफ वॉटसन एंड क्रिक ऑफ डीएनए. ईच स्ट्रैंड ऑफ अ डीएनए हेलिक्स, हर एक स्ट्रैंड जो है डीएनए हेलिक्स का वो कुछ यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड से बना होता है. एंड व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड स्पेशली वी विल डिस्कस अबाउट इन अवर नेक्स्ट टॉपिक्स. Nucleotides consist of three components. Okay, so nucleotide, what is a nucleotide? इसके तीन components होते हैं, ribose और deoxyribose. For example, if there is DNA, that is a main genetic material, then the sugar will be deoxyribose, but if the sugar will be ribose, then the genetic material will be RNA. Okay, and second component for this is nitrogenous bases, and nitrogenous bases are of two types, that is purines and pyrimidines. Number third component, that is of DNA or genetic material, that is phosphate group. Okay, so there are three components of nucleotides, that is number one deoxyribose or ribose, number two nitrogenous bases, and number three phosphate group. Okay, now what is DNA? We will discuss the structure of the DNA and many more. Moving further, we will discuss about that how many types of nitrogenous bases are there. So we have discussed that there are two types of nitrogenous bases. One is purine and another one is pyrimidines. So purine includes adenine and guanine. यहाँ पे दो होते हैं, जिसको एक को बोलते हैं हम adenine and the second one is guanine. Adenine is denoted by A and guanine is denoted by G. What are pyrimidines? Pyrimidines included थाइमीन, साइटोसिन, यूरेसिल. सो साइटोसिन जो है हमारा, उसको हम सी से डिनोट करते हैं, थाइमीन को टी से एंड यूरेसिल को यू से. बट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन पायरिमिडीन इज दैट यूरेसिल इज ओनली फाउंड इन आरएनए एंड द अदर वंस लाइक साइटोसिन एंड थाइमीन दे आर फाउंड इन our DNA. Okay, thymine which is also called 5-methyl uracil, ये present होता है हमारे DNA में and uracil is only found in RNA. I hope it is clear to you all. Now moving ahead, a nitrogenous base is linked to the OH of first C-pentose sugar through an N-glycosidic linkage to form nucleoside. Okay, अब नाइट्रोजनस बेस कोई भी वो एक OH से कनेक्टेड रहता है फर्स्ट कार्बन पे पेंटोज शुगर की, और वहाँ पे एक लिंकेज बनाता है वो, जिसको हम बोलते हैं N-glycosidic लिंकेज, और उसको उस लिंकेज को फॉर्म करके वो न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन करता है. ओके, सो न्यूक्लियोसाइड्स जो हमारे आरएनए में प्रेजेंट हैं वो कौन कौन से हो गए? एडोनिन, एडोनिसिन, ग्वानियोसिन, साइटिडीन एंड यूरिडीन. बट जो न्यूक्लियोसाइड्स हमारे डीएनए में प्रेजेंट होते हैं, जस्ट बिकॉज वहाँ पे डीऑक्सीराइबोस शुगर है, तो इसको हम बोलते हैं डीऑक्सीडिनोसिन और डीऑक्सीग्वानियोसिन, डीऑक्सीसाइटिडीन एंड डीऑक्सीथाइमिडीन. ओके, आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू ऑल. मूविंग अहेड, अब फॉस्फेट ग्रुप, एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो हमेशा एक लिंक्ड रहता है 5 कार्बन पे OH ग्रुप के एंड टू अ न्यूक्लियोसाइड, और एक न्यूक्लियोसाइड से जुड़ा रहता है वो फॉस्फोएस्टर लिंकेज से, ताकि वो एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कर पाए या फिर एक डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कर पाए. आरएनए में वही दूसरी चीज़ होती है, क्योंकि वहाँ पे कौन सा ग्रुप होता है? राइबोन्यूक्लियोटाइड ग्रुप. सो इट हैज़ एन एडिशनल OH ग्रुप. आरएनए के पास एक एडिशनल OH ग्रुप होता है जो कि सेकेंड कार्बन ऑफ राइबोज से जुड़ा हुआ होता है, एंड द सेकेंड न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक थ्रू 3 to 5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और जो सेकेंड न्यूक्लियोटाइड है वो हमेशा ऐड रहता है 3 to 5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से, ताकि वो एक डाई न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कर पाए, क्योंकि वहाँ पे दो न्यूक्लियोटाइड अटैच रहते हैं.
व्हेन मोर न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक, जब एक होगा तो हम उसको सिंगल न्यूक्लियोटाइड बोल सकते हैं, बट इफ टू न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स आर जॉइन टुगेदर तो हम उसको बोलते हैं डाइन्यूक्लियोटाइड, एंड इफ थ्री न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स और मोर देन थ्री न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म टुगेदर, then it is also called polynucleotide. Okay, so it is a polynucleotide chain. You can easily see here 5-phosphate group, adenine, thymine, guanine and cytosine, and at the last one there is a 3 hydroxyl group or OH group that is present over here. Okay, now moving ahead, what is the structure of DNA? फ्रेडरिक मेशर इन 1869 इन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई किया था और उसको नाम दिया था न्यूक्लिन का. एंड ऑन द अदर हैंड, जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक इन्होंने एक नया स्ट्रक्चर बनाया था डीएनए का, जिसको 1953, जिसको डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल भी बोला जाता है. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. और इसको इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट से निकाला था विच इज़ एक्सरे डिफ्रैक्शन क्रिस्टलोग्राफी, और ये डाटा जो है वो प्रोड्यूस किया था मॉरिस विल्किंस ने एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन ने. ओके, so these are the hydrogen bonds which join each purine and pyrimidine together, double stranded polynucleotide chain. This is a whole new structure which Watson and Crick performed, made by their X-ray crystallography. Okay, so based on their adenine and thymine, guanine, cytosine, these are joined by hydrogen bonds. ये सारे जो भी हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, बेस पेयर्स हैं, ये सारे हमारे किससे ऐड रहते हैं? Just by the hydrogen bonds. Okay, guanine and cytosine are joined by 3 hydrogen bonds, but adenine and thymine are joined by 2 hydrogen bonds. Okay, and on the other hand, ये जो blue color का दिख रहा है ये होता है sugar phosphate backbone. Now moving further, DNA is made up of 2 polynucleotide chain. DNA हमारा 2 polynucleotide chain से बना हुआ होता है, जो कि right handed fashion में coil होती हैं. These are always coiled rightly. Okay, it has also a backbone of sugar and phosphate. यहाँ पे एक sugar और phosphate की backbone है जो कि inside की ओर project करती है. That means inside की ओर coiled होती है. तो दो chains जो है हमारी, दोनों जो हमने पढ़ी हैं अभी helix में, वो दोनों anti parallel polarity की तरफ run करती हैं. That means if one runs from 3 to 5 direction, then the other chain will run from 5 to 3 direction. इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल पोलैरिटी. ओके, तो जो बेसिस है यहाँ पे वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं. लाइक इट इज गिवन ऑल्सो, एडेनिन और थाइमिन जुड़ा होगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, वेयर एज साइटोसिन और ग्वानिन जुड़ा होगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से. ओके, प्योरीन कम्स ऑपोजिट टू अ पायरिमिडीन. प्योरीन हमेशा एक पायरिमिडीन के ही ऑपोजिट में ज्वाइंट होगा. दिस जनरेट यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्ट्रैंड. इसी वजह से, क्योंकि एक जगह पे ऑपोजिटली वहाँ पे प्योरीन अटैच है एंड द सेकेंड वन इज पायरिमिडीन, तो एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस बनी रहती है स्ट्रैंड के बीच में, ताकि वो एक राइट हैंडेड फैशन में कॉइल्ड रह सके. नाउ द सेकेंड वन इज इरविन चार ग्राफ्स रूल. तो अगर हम देखें इरविन के चार ग्राफ रूल में, तो जो प्रोपोर्शन है ए का वो हमेशा इक्वल रहता है टी के, और जो प्रोपोर्शन है जी का वो हमेशा इक्वल रहता है सी के. ओके, तो अगर हम एडेनिन और ग्वानिन को प्लस करें तो वो थाइमिन और साइटोसिन के इक्वल होगा, एंड विच इज ऑल इक्वल टू 1. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, दैट इज 174. So some more important points are, a bacteriophage will have 5386 nucleotides and a bacteriophage lambda has 48,502 base pairs. E. coli will have 4.6 into 10 raised power 6 base pair, and a haploid content of DNA, human DNA, it will have a 3.3 into 10 raised power 9 base pairs. Okay, I hope this one is clear to you all. सो अब हम बात करते हैं लेंथ ऑफ डीएनए की. तो अगर लेंथ ऑफ डीएनए अगर हम देखें तो नंबर ऑफ बेस पेयर्स जितने भी हमारे एक डीएनए के हेलिक्स में प्रेजेंट हैं, उसको अगर हम उसके एडजेसेंट बेस पेयर्स की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो वी विल गेट द होल लेंथ ऑफ अ डीएनए. तो नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन ह्यूमन में कितने बेस पेयर्स होते हैं? 6.6 इंटू 10 रेज़ पावर 9. एंड द लेंथ ऑफ डीएनए, लेंथ जो होती है डीएनए की, उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 0.34 इंटू 10 रेज़ पावर -9, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 एडजेसेंट बेस पेयर्स, then the length of a particular DNA will be 2.2 m. Okay, in E. coli length of DNA 1.6 mm. Therefore the number of base pairs we can easily get through the following calculations. Now moving further, what is the packaging of DNA helix? हम सब ने पढ़ा है कि if DNA are packed together they form a chromosome or chromatin network, but what is actually the packing in DNA? So in prokaryotes the DNA is not scattered. Prokaryotes में अगर हम देखें
तो हमारा डीएनए जो है वो स्कैटर्ड नहीं होता पूरे सेल में, वो कहीं कहीं पे पाया जाता है. डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, एज वी ऑल नो दैट डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, सो इट इज हेल्ड बाय सम पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स, ताकि वो एक न्यूक्लियोइड का स्ट्रक्चर फॉर्म कर सके. सो ऑलवेज वी ऑल नो दैट अ ऑपोजिट अट्रैक्ट्स. Okay, so if DNA is negatively charged, so it will attract some positive proteins also, and to form a nucleoid they both will pack together. Okay, in eukaryote there is a set of positively charged basic proteins called histones. Okay, but in prokaryotes there is no such proteins that is present, but in in prokaryotes there is no such protein, but in eukaryotes there is proteins present which are positively charged, and these proteins are called histone proteins. Histone proteins जो होते हैं हमारे, वो rich होते हैं positively charged basic amino acids में, जहाँ पे lysines और arginines के basic amino acids present रहते हैं. ओके, 8 हिस्टोन प्रोटीन जो है वो मिलके एक हिस्टोन ऑक्टामर का फॉर्मेशन करते हैं. ऑक्टामर मतलब 8, जिसमें 8 चीज़ें प्रेजेंट हो. सो 8 हिस्टोन्स जो हैं हमारे, 8 प्रोटीन्स मिलके एक डीएनए को पैक करते हैं, एंड दे फॉर्म अ फुल मॉलिक्यूल ऑफ एन हिस्टोन ऑक्टामर. अब एक नेगेटिवली चार्ज डीएनए ये रैप होता है हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ और एक पूरा स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, एंड दिस होल मॉडल इज नोन एज अ न्यूक्लियोसोम मॉडल. ओके, इट इज इजीली formed, but here you can see the histone octamer inside, and the DNA that is negatively charged is wrapped around the proteins, histone proteins, and here in the side there is H1 histone. H1 histone को हम linker भी बोलते हैं because it links the negatively and positively charged DNA and proteins together. Okay, I hope this one is clear to you all. अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम, एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम अगर हम उसकी बात करें तो उसमें 200 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं. वहीं अगर हम टोटल न्यूक्लियोसोम्स देखें एक ह्यूमन के अंदर, नॉर्मल ह्यूमन के अंदर, तो वो होते हैं 3.3 × 10⁻⁷. ओके, न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ क्रोमेटिन. न्यूक्लियोसोम बहुत सारे क्रोमेटिन का एक रिपीटेड नेटवर्क होता है, वहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स जो हैं वो एक साथ अटैच रहते हैं. और क्रोमेटिन एक्चुअल में है क्या? ये एक थ्रेड लाइक स्टेन्ड बॉडी है. इट इज़ अ थ्रेड लाइक वेरी स्मॉल बॉडी, इसको हम कह सकते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग. एक स्ट्रिंग पे अगर बीड्स लगे हो तो ये उस टाइप का मटेरियल है. एंड या बीड्स ऑन स्ट्रिंग. क्रोमेटिन इज पैक्ड, क्रोमेटिन फाइबर्स जो है, पहले क्रोमेटिन पैक्ड होता है, फिर क्रोमेटिन फाइबर्स का फॉर्मेशन करता है, फिर वो कॉइल होता है, कंडेंस्ड होता है मेटाफेज स्टेट में, और फिर एक क्रोमोसोम का, पर्टिकुलर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है. अगर हायर लेवल पे ये पैकेजिंग होती है क्रोमेटिन में, तो वहाँ पे नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स भी प्रेजेंट रहते हैं. एंड क्रोमेटिन हैज 2 फॉर्म्स. क्रोमेटिन 2 टाइप्स का होता है. नंबर 1 इज यूक्रोमेटिन एंड नंबर 2 इज हेट्रोक्रोमेटिन. ओके, यूक्रोमेटिन क्या होता है? जहाँ पे हमारा जो लूजली पैक्ड है, जहाँ पे जो हमारा मटीरियल है वो लूजली पैक्ड है, इट इज़ नॉट सो स्टिफ, इट कैन बी इजीली ब्रेक, एंड एक ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन ऑफ क्रोमेटिन होता है. बट ये लूजली तो पैक्ड होता है यूक्रोमेटिन, बट ये एक्टिव होता है एंड इट स्टेन्स लाइट. इसकी जो स्टेनिंग होती है ये बहुत लाइट होती है. तो मेन पार्ट्स क्या हो गए हमारे यूक्रोमेटिन के? फर्स्ट, नंबर 1 इज दैट इट इज स्टेन लाइट, एंड नंबर 2 इज इट इज लूजली पैक्ड, नंबर 3 इज इट इज एक्टिव रीजन ऑफ द क्रोमेटिन. ओके, वहीं अगर हम दूसरे हाथ में हेट्रोक्रोमेटिन के बारे में देखें तो ये डेंसली पैक्ड होता है, मतलब बहुत डीपली ये पैक्ड होता है, इनएक्टिव रीजन होता है, एंड इट इज स्टेन डार्क. ये थोड़ा सा डार्कली स्टेन्ड होता है. Okay, I hope this one is clear to you all, euchromatin and heterochromatin. Now moving further, we will discuss about the search of a genetic material. कैसे हमको पता चला that we have to take DNA as a genetic material, not RNA or a protein. And there are many misconceptions also about DNA or RNA, that we have to take DNA and where we have to take RNA. So we will discuss here. Number 1, what is the first experiment to take genetic material, that where we can go about the search for a genetic material? Number 1 experiment was Griffith transforming principle experiment, which was proposed by a scientist Frederick Griffith in 1928. और इन्होंने एक माइस यूज किया था, वो भी एक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के साथ. ओके, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इसके 2 स्ट्रेन्स पाए जाते हैं नॉर्मल. तो नंबर 1 स्ट्रेन जो था स्मूथ था, जिसको हम एस से भी डिनोट करते हैं, ये वायरलेंट था. ओके, नंबर 2 जो था स्ट्रेन हमारा वो रफ स्ट्रेन था, जो कि नॉन वायलेंट था. जो हमारा एस स्ट्रेन था, इस पे एक पॉलीसेक्राइड म्यूकस का कोट प्रेजेंट था चारों तरफ, एंड ये निमोनिया कॉज करता था. ओके, रिमेंबर दिस, जो एस स्ट्रेन था वो हमारा निमोनिया कॉज करता था, वाइल द R1 डू नॉट कॉज निमोनिया, और यहाँ पे कोई भी म्यूकस का कोट नहीं प्रेजेंट था. अब अगर हम एक्सपेरिमेंट देखें तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो एस स्ट्रेन था पहले वो माइस के अंदर इंजेक्ट किया, पूरा एस स्ट्रेन इन निडल से माइस के अंदर इंजेक्ट किया. तो इन्होंने देखा जो माइस था हमारा उसकी डेथ हो गई. बट ऑन द सेकेंड हैंड इन्होंने क्या किया, आर स्ट्रेन को लिया, उसको माइस के अंदर इंजेक्ट किया, बट द माइस लाइव, मतलब वो वहाँ पे अभी मरा नहीं था. बट ऑन द थर्ड केस इन्होंने क्या किया, इन्होंने एस स्ट्रेन को हीट करके किल किया.
फर्स्टली इनको हीट किया, फिर उसके बाद किल किया, तो इन्होंने उसके बाद उसको माइस में इंजेक्ट किया, तो इन्होंने ये देखा कि जो माइस थे वो तब जिंदा रह रहे थे। दैट मीन्स जब हमने पहले बिना हीट किल किया था तो वहाँ पे माइस की डेथ हो रही थी, बट अब यहाँ पे क्या है, माइस हमारे इनका जो है ये मर नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है हमें कि देयर इज समथिंग दैट इज पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, जिसकी वजह से माइस जो है अभी तक वहाँ पे उनके अंदर लाइफ है। ओके, नंबर थर्ड इज जब इन्होंने आर स्ट्रेन को हीट कर लिया और सॉरी एस स्ट्रेन को हीट कर लिया और आर स्ट्रेन को लाइव वहीं पे इंजेक्ट कर दिया, तो माइस हमारा उनकी डेथ हो गई। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हमने एस स्ट्रेन को हीट किल्ड किया है आर स्ट्रेन के कंपैरिजन में, उसकी वजह से आर स्ट्रेन जो है वो एक स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट और बिकम वायलेंट हो गया है। मतलब पहले हमने क्या किया था, एस स्ट्रेन को हमने हीटो किल किया था, जिसकी वजह से वो आर स्ट्रेन बन गया था, जो कि अब स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट में प्रेजेंट है। दिस मस्ट ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटीरियल। तो इनका कहना था कि देयर इज समथिंग जो कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हुआ है, जिसकी वजह से अब जो है माइस की डेथ नहीं हो रही है। तो वो किस वजह से हुआ है, एक जेनेटिक मटीरियल की वजह से। बट अभी भी हमें प्रॉपरली पता नहीं चल पाया था कि वो एक्चुअल जेनेटिक मटीरियल है कौन सा, वेदर इट इज अ डीएनए, आरएनए और अ प्रोटीन। सो इसके लिए और फर्दर हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने फर्दर एक्सपेरिमेंट्स किए ताकि एक बेस क्लियरिटी मिल जाए हम लोगों को कि व्हाट इज द जेनेटिक मटीरियल। ओके, now moving to the second experiment, that is a biochemical characterization of a transforming principle। तो यहाँ पे ओसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लियॉइड एंड मैकलिन मैकार्थी, इन्होंने एक बायोकेमिकल नेचर जो था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का, उस पर वर्क किया था ग्रिफिथ के ही एक्सपेरिमेंट से कनेक्ट करके। ओके, इन्होंने प्योरीफाई किया बायोकेमिकल्स को। बायोकेमिकल्स हमारे थे प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए, इन्होंने सबको प्योरीफाई किया, फिर उसको हीट किल्ड एस सेल्स के साथ सुटेबल एंजाइम्स के साथ डाला। तो इन्होंने ये देखा कि जो डाइजेशन था प्रोटीन और आरएनए का, उसमें उसको डाइजेस्ट करने में हमने प्रोटीएजेस और आरएनएस का हेल्प लिया था, जिसने हमारे ट्रांसफॉर्मेशन को इफेक्ट नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि ना तो सब्सटेंस जो ट्रांसफॉर्म हुआ है, जो चेंज हो रहा है, वो ना तो प्रोटीन था ना ही आरएनए था, क्योंकि अगर हमारा जेनेटिक मटेरियल होगा तो वो ट्रांसफॉर्म होगा। ओके, क्योंकि तभी तो वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में हमारा जा पाएगा। बट अगर वो ट्रांसफॉर्म ही नहीं हो रहा, दैट मीन्स इट इज नॉट अ जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे हमें पता चला कि ना तो प्रोटीन ना ही डीएनए सॉरी आरएनए हमारा ट्रांसफॉर्म हो रहा है। बट जब हमने डीएनए को डाइजेस्ट कराया डीएनए से, तो उसने ट्रांसफॉर्मेशन को इनहिबिट कर दिया, रोक दिया। इसका मतलब ये है कि डीएनए ने ट्रांसफॉर्मेशन को कॉज करा था जब हमने आर सेल्स से एस सेल्स को बनाया था, जिसकी वजह से हमें ये पता चला दैट डीएनए वाज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, कि डीएनए ही जो था इकलौता हमारा जेनेटिक मटेरियल था जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है। ओके, नंबर थर्ड एक्सपेरिमेंट वाज हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट, जिसको ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है, और ये इन्होंने 1952 में लेके आए थे। हर्शे एंड चेज ग्रीव सम बैक्टीरियोफेजेस, इन्होंने कुछ बैक्टीरियोफेजेस वायरसेस को एक मीडियम में रेडियोएक्टिव फास्फोरस जिसमें प्रेजेंट था उसमें ग्रो कराया। ओके, कुछ वायरस बैक्टीरियोफेजेस को इन्होंने ऐसे मीडियम में डाला जिसमें फास्फोरस प्रेजेंट था। अब एज वी ऑल नो, डीएनए के पास एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, यानी कि कहीं ना कहीं फास्फोरस उसमें प्रेजेंट होता है। और दूसरे मीडियम में इन्होंने रेडियोएक्टिव सल्फर लिया था, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल। सो ओके, अब वायरसेस को इन्होंने जब ग्रो कराया फास्फोरस के साथ, तो इन्हें रेडियोएक्टिव डीएनए मिला, बिकॉज ओनली डीएनए कंटेन फास्फोरस। क्यों? क्योंकि डीएनए के पास ही फास्फोरस होता है। बट वायरसेस जिनको इन्होंने सल्फर में ग्रो कराया था, उनको वहाँ पे रेडियोएक्टिव प्रोटीन मिला। क्यों? क्योंकि प्रोटीन के पास सल्फर प्रेजेंट होता है। तो ये जो प्रिपरेशंस थी ये सेपरेटली की गई ताकि वो एक ई कोलाई को इन्फेक्ट करा पाए। बट इन्फेक्शन जब हुआ तो जेंटली इन्होंने ये देखा कि वहाँ पे एक रिमूव हो गया वायरस के पार्टिकल्स का बैक्टीरिया से। फिर जो कल्चर था हमारा जिसमें हम ये सब करवा रहे थे, तो वो सेंट्रीफ्यूगेट हो गया एंड सेपरेट लाइटर वायरस पार्टिकल्स। इन्होंने जो लाइटर वायरस के पार्टिकल्स से उनको सेपरेट कर दिया हैवी बैक्टीरियल के सेल्स से। तो अब ये पता चला कि जो रेडियो एक्टिव डीएनए था वो तो रेडियो एक्टिव रहा, और दैट इज डीएनए हैज पास फ्रॉम द वायरस टू द बैक्टीरिया। अब ये एक कंक्लूजन निकला कि जो डीएनए है हमारा वही पास हुआ है वायरस से बैक्टीरिया में, जिसकी वजह से वो इन्फेक्ट हो गया, क्योंकि उसके वायरसेस के अंदर तो रेडियो एक्टिव प्रोटीन था, लेकिन रेडियो एक्टिव जो था हमारा डीएनए तो प्रेजेंट नहीं था। सो प्रोटीन्स डिड नॉट एंटर द बैक्टीरिया फ्रॉम द वायरस। तो हमें ये कंक्लूजन मिला कि जो प्रोटीन है हमारा वो एंटर नहीं किया था वायरसेस में, बट जो डीएनए था वो एंटर किया था, जिस वजह से ये पास ऑन हुआ आगे। सो यहाँ पे हमें एक कंक्लूजन मिल गया था कि जो डीएनए है वही हमारा एक फाइनल जेनेटिक मटेरियल है जो कि पास ऑन होता है। ओके, ये इट इज अ डायग्राम ऑल्सो। Yes, at first, number first step we can see the infection.
यहाँ पे इन्फेक्शन कॉज हो रहा है, नंबर सेकंड में ब्लेंडिंग हो रही है आपस में सारे जेनेटिक मटेरियल की, नंबर 3 सेंट्रीफ्यूगेशन हो रहा है। तो सल्फर जो था, कोई भी सल्फर हमें प्रेजेंट नहीं मिला था डिफेक्टेड सेल्स में। और इस सेकंड वाले उसमें अगर हम देखें तो वहाँ पे फॉस्फोरस हमें डिटेक्ट हुआ था, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी वो सुपरनेटेड, और फॉस्फोरस तभी डिटेक्ट हो सकता है दैट मीन्स वहाँ पे डीएनए का प्रेजेंस हो, क्योंकि फॉस्फोरस ओनली इट इज फाउंड इन डीएनए। ओके, सो इट इज क्लियर दैट डीएनए इज द ओनली जेनेटिक मटीरियल। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एक पर्टिकुलर अच्छे जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं कि हम उसको चूज करें कि नहीं दिस इज द राइट वे और दिस इज द राइट proportion सो दैट वी कैन टेक इट एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल मस्ट हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं उसकी? पहला, इट हैव द एबिलिटी टू जनरेट इट्स रेप्लिका, कि वो इजीली रेप्लिकेट करके अपने रेप्लिका को जनरेट कर पाए, अपने जैसा एक और बना पाए। ओके, क्योंकि अगर वो अपने जैसा एक और नहीं बना पाएगा तो नेक्स्ट जनरेशन में वो पास ऑन नहीं हो पाएगा, बिकॉज देयर आर मेनी मोर जनरेशंस टू टेक दैट जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम। ओके, द सेकेंड प्रॉपर्टी इज दैट केमिकल एंड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी। जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो बाहर की चेंजेस या हमारी बॉडी की चेंजेस वो सब उनको इफेक्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो जेनेटिक मटेरियल हमारा स्टेबल नहीं होगा तो फिर वो आगे पास ऑन नहीं कर पाएगा, जिस वजह से हमारा जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो आगे नहीं जा पाएगी। तो अगर वो स्टेबल है तो इसका मतलब ये है कि वो इजिली पास ऑन कर सकता है। एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट प्रोवाइड द म्यूटेशन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीवियर प्रोपोर्शन में नहीं, बट छोटे अमाउंट में म्यूटेशन भी हो पाए ताकि वो इवोल्यूशन में हेल्प करे। व्हाट इज इवोल्यूशन? इवोल्यूशन इज दैट चेंज और सडन ग्रेजुअल चेंज जो कि हमारी एनवायरनमेंट के वजह से हमारी बॉडी में होता है। एंड म्यूटेशन इज ऑल्सो द सेम। म्यूटेशन डिलीटेरियस भी हो सकते हैं, बट दे आर हार्मफुल ऑल्सो, बट यूजफुल ऑल्सो, बट इन मोस्टली केसेज इट इज हार्मफुल। सो ये म्यूटेशन तो दे, बट ये इवोल्यूशन की ओर भी लेके जाए। ओके, एबिलिटी टू एक्सप्रेस इस मेंडेलियन कैरेक्टर्स, और जितने भी मेंडेलियन कैरेक्टर्स हमने लास्ट चैप्टर में पढ़े थे हमारे, वो सब उनको वो एक्सप्रेस कर सके। ओके, तो रीज़न जो है स्टेबिलिटी की कि हमने डीएनए को क्यों जेनेटिक मटेरियल लिया और आरएनए को नहीं लिया, तो ये था कि डीएनए हमारा डबल स्टैंडर्ड था। ओके, तो इजीली वहाँ पे दोनों बेस पेयर्स हमारे जो थे दैट इज प्योरीन एंड पायरिमिडीन वो इक्वल प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते थे। बट हमारा जो आरएनए था वो सिंगल स्टैंडर्ड था और वहाँ पे इतनी स्टेबिलिटी नहीं पाई गई। ये जो था लेस रिएक्टिव था, मतलब इजीली किसी के साथ रिएक्ट करके तुरंत कोई कुछ भी शो नहीं करता था, बट इसमें हाई रिएक्टिविटी थी। ये बहुत जल्दी किसी के साथ भी विगरस रिएक्शंस परफॉर्म करने लगता है आरएनए। अब वहीं पे अगर हम देखें डीएनए में हमारा थाइमीन प्रेजेंट है और आरएनए में हमारा यूरेसिल प्रेजेंट है, और हमारा डीएनए में जो 2OH ग्रुप है शुगर में वो एब्सेंट रहता है, जबकि हमारा आरएनए में 2OH ग्रुप शुगर में प्रेजेंट रहता है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल कि व्हाई वी हैव टेकन डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। नाउ मूविंग फर्दर, आरएनए जो है हमारा अनस्टेबल है, तो आरएनए जो है वो वायरसेस जैसे कि बैक्टीरियोफेजेस, टोबैको मोजाइक वायरसेस म्यूटेट और इवॉल्व फास्ट है। ये म्यूटेट कर जाता है और इवॉल्व भी बहुत फास्टर रेट पे करता है। वहीं अगर हम देखें डीएनए स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंटैरिटी शो करते हैं। लाइक आई टोल्ड यू कि वहाँ पे दो एंटी पैरेलल पोलैरिटीज में दोनों हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन रन करती हैं। इफ वन विल हैव 5 to 3 डायरेक्शन देन द अदर विल हैव 3 to 5 डायरेक्शन। ओके, तो जब हम इनको हीट करते हैं तो वो सेपरेट भी हो जाती हैं दोनों स्ट्रैंड्स, और एप्रोप्रिएट कंडीशन के हिसाब से साथ में भी आ जाती हैं। तो जो हमारे ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था उन्होंने कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज बताई थी डीएनए की जिसमें हम हीट किल्ड बैक्टीरिया को प्रेजेंट करते थे जो कि डिस्ट्रॉय नहीं होते थे। इसका मतलब है वो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि डीएनए हमारा इतना स्टेबल है कि हम उसको हीट किल्ड भी कर रहे हैं, स्टिल हमारा डीएनए इजीली पास ऑन हो रहा है। दैट मीन्स वो लेस रिएक्टिव है और एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में हम उसको यूज कर सकते हैं। तो फॉर द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, अगर हम जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करके रख सकें तो डीएनए एक बेटर स्टेबिलिटी शो करता है इन कंपैरिजन टू आरएनए, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसमिशन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का अच्छे से हो पाता है। आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए डायरेक्टली कोड कर सकता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, हैंस कैन इजीली एक्सप्रेस द कैरेक्टर, और जो कैरेक्टर्स हैं जितने भी उनको इजीली एक्सप्रेस कर सकता है। डीएनए डिपेंडेंट होता है आरएनए पे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ओके, आई होप दिस topic is clear to you all. It is very easy topic, but if you all feel any doubt regarding this topic, you all can comment in the comment section. Now moving to the next topic, that is RNA world. RNA was the first genetic material. पहले जब हमें पता नहीं था कि एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल है क्या, तो हमें समझ में यही आया था कि RNA जो है हमारा फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है, बिकॉज वी वर नॉट कमिंग ऑन अ कंक्लूजन कि वेदर विच इज मोर गुड फॉर आवर एक्सपेरिमेंट्स और एनीथिंग। सो इट एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल कैटलिस्ट। हमारा आरएनए जो है हमारा जेनेटिक मटेरियल की तरह काम भी करता है और एक कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है। कैटलिस्ट होता क्या है? बायो कैटलिस्ट। ये जो है जितनी भी रिएक्शंस हमारी बॉडी में परफॉर्म हो रही हैं उनको एक फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब उनको एक तरीके से एक्सेलरेट करने का काम कैटलिस्ट का होता है।
एसेंशियल होता है ये लाइफ प्रोसेस के लिए, जितने भी हमारी बॉडी में लाइफ प्रोसेसेस हो रहे हैं लाइक मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग, इन सब में आरएनए कहीं ना कहीं थोड़े बहुत क्वांटिटी में इन्वॉल्व होता ही होता है। नाउ द फोर्थ वन इज डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए वाज फॉर स्टेबिलिटी। अब डीएनए जो है हमारा बेसिकली वो आरएनए से ही इवॉल्व हुआ है, लेकिन वो डीएनए जो है हमारा वो ज़्यादा स्टेबल है ड्यू टू द मोर प्रॉपर्टीज इन कंपैरिजन टू द आरएनए। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम एक सेंट्रल डॉगमा जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो बेसिकली पढ़ते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं कि वो एक्चुअल में है क्या। तो एक फ्रांसिस क्रिक नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के फ्लो को बताया था। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मतलब जो इन्फॉर्मेशन एक पेरेंट जनरेशन से एक ऑफस्प्रिंग में जाती है उसको बोलते हैं हम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का जो फ्लो है वो पहले डीएनए में होता है, देन इट गोज टू आरएनए एंड देन द आरएनए सेंड दिस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू द प्रोटीन, जो कि प्रोटीन हमारी बॉडी में ट्रांसलेशन के प्रोसेस से बनता है। ओके, तो डीएनए क्या करता है, रेप्लिकेशन से रेप्लिकेट होता है, जैसे रेप्लिकेट करेगा अपनी रेप्लिका एक बनाएगा, फिर उसके बाद डीएनए क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है। ओके, ट्रांसक्रिप्शन करता है, उसके बाद वहाँ पे अनकॉइलिंग होती है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स की, फिर धीरे धीरे वो एमआरएनए में कन्वर्ट होती है। एक स्ट्रैंड जो है वो हमारा परफॉर्म कर रही होती है अदर फंक्शंस। सो उसके बाद एमआरएनए जो है वो ट्रांसलेशन करके प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। तो ये होल प्रोसेस जो है वो सेंट्रल डॉगमा कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ से फ्लो कर रही है, पहले जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमारी डीएनए में प्रेजेंट होती है, फिर उसके बाद वो आरएनए में एंटर करती है एंड देन इट मूव्स टू प्रोटीन। ओके, नाउ कुछ वायरसेस में जो फ्लो है इन्फॉर्मेशन का वो रिवर्स डायरेक्शन में भी मूव करता है, लाइक फ्रॉम आरएनए टू डीएनए, नॉट फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। तो इसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी बोलते हैं, बट इट इज़ वेरी रेयर इन सम वायरसेस ओनली। मोस्टली हम यही जो हमारा डायरेक्शन, ये जो इन्फॉर्मेशन है यही फ्लो होता है इसका, दैट इज डीएनए, आरएनए एंड देन प्रोटीन। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन इज द कॉपिंग ऑफ अ डीएनए फ्रॉम पेरेंटल डीएनए। रेप्लिकेशन होता क्या है, जब हम एक डीएनए का कॉपी बना रहे हैं एक पेरेंटल डीएनए से, उसको हम रेप्लिकेशन बोलते हैं, लाइक रेप्लिका बनाना या फिर एक रेप्लिकेशन, रेप्लिकेट करना किसी चीज को। तो इट इज अ फॉर्मिंग अ कॉपी ऑफ एनीथिंग। ओके, तो वॉटसन क्रिक ने एक सेमी कंजर्वेटिव मॉडल बनाया था डीएनए का, रेप्लिकेशन का। इससे हमें ये पता चला था कि जो पेरेंटल डीएनए है, किसी भी पेरेंट का जो डीएनए स्ट्रैंड है वो एक टेम्पलेट की तरह काम करता है। टेम्पलेट मतलब बेस की तरह काम करता है कि भाई हमने एक लिया, अब उसके बाद हमें उसी से कॉपीज बनानी है जो कि हमारी आगे आने वाली जनरेशन में ट्रांसफर होगी। ओके, फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड, अब उसी से हम आगे आगे और भी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड्स बना सकते हैं। बट आफ्टर रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन के बाद हर डीएनए मॉलिक्यूल जो है उसके पास अपना एक पेरेंटल ओन स्ट्रैंड नया प्रेजेंट होता है, क्योंकि एक तो पेरेंटल है एंड द सेकेंड वन इज दैट इज प्रोवाइडिंग अ रेप्लिका जो रेप्लिकेशन से बन रहा है। इसी तरीके से हर एक डीएनए के बाद, तो सेमी कंजर्वेटिव इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पूरा एक जो है नया बन रहा है, यहाँ पे एक स्ट्रैंड हमारी पेरेंटल होती है और एक स्ट्रैंड जो है वो नई फॉर्म हुई होती है। तो कहीं ना कहीं एक पॉलीपेप्टाइड चेन हमारी वैसे पुरानी रहती है, पेरेंटल जो है, एंड द सेकंड वन इज दैट इज न्यूली सिंथेसाइज्ड। तो इसमें हम ये कह सकते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि ज्यादा स्टेबल माना गया था अदर देन ऑल द कंजर्वेटिव डीएनएस। ओके, तो मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल जो थे, इन्होंने 1958 में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसको सेमी कंजर्वेटिव मॉडल बोला जाता था। तो इन्होंने क्या किया था, ई कोलाई को NH4Cl ओके अमोनियम क्लोराइड मीडियम में ग्रो कराया था। N जो कि एक हैवी आइसोटोप होता है हमारा नाइट्रोजन का, तो वहाँ पे केवल नाइट्रोजन सोर्स के लिए उसको लिया गया था। तो N वॉज इनकॉर्पोरेटेड, उसको अंदर डाला गया न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए के अंदर। उसके बाद हैवी डीएनए जो था उसमें डिस्टिंग्विश किया गया फ्रॉम डीएनए, मतलब जो नया डीएनए था उसको पुराने डीएनए से हमने अलग करके रखा, तो बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। और यहाँ पे हमने सेंट्रीफ्यूगेशन में हमने सीजियम क्लोराइड का यूज़ किया था जिसकी डेंसिटी ज़्यादा पाई जाती है। ओके, अब ई कोलाई के जो सेल्स थे हमारे जिसमें नाइट्रोजन का मीडियम ऑलरेडी प्रेजेंट था, उसको हमने ट्रांसफर किया NH4Cl के मीडियम में। एंड आफ्टर वन जनरेशन, एक जनरेशन के बाद 20 मिनट्स आफ्टर या अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट्स, वहाँ पे हमने सेंट्रीफ्यूगेटेड डीएनए को आइसोलेट कर लिया, मतलब वहाँ से निकाल के अलग कर लिया। एंड इट्स डेंसिटी वॉज इंटरमीडिएट। अब हमने जब चेक किया तो उसकी जो डेंसिटी थी वो इंटरमीडिएट थी, मतलब एक हाइब्रिड टाइप का फॉर्म हो गया था दोनों के बीच में। एक तो हमारा N15 था जो कि नाइट्रोजन का जो सोर्स था मेन, एक था N14 डीएनए, तो एक बीच का फॉर्म हो गया था वहाँ पे। इससे हमें ये पता चलता है कि जो न्यूली फॉर्म डीएनए है और वन स्ट्रैंड इज ओल्ड, जहाँ पे एक स्ट्रैंड ओल्ड है और जो नई स्ट्रैंड है वहाँ पे जो दूसरी स्ट्रैंड है वो N14 की टाइप की है। तो हमें ये पता चलता है एक हमारा सेमी कंजर्वेटिव फॉर्म हो गया था, दैट मीन्स हाइब्रिड टाइप। वहाँ पे एक पेरेंटल है और एक हमारा नया सिंथेसाइज्ड है, तो एक का हो गया सोर्स जो नाइट्रोजन का है तो N15 एंड द अदर वन दैट इज न्यूली सिंथेसाइज्ड विल हैव द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन दैट इज N14। ओके, सो इट वॉज द ऑल आफ्टर सेकेंड। अब सेकेंड जनरेशन के बाद क्या होता है, सेकेंड जनरेशन इजीली 40 मिनट्स में हम डेवलप कर सकते हैं। वहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड्स पाए गए थे और ये लाइट डीएनए था जो कि नॉर्मल पहले जैसा नहीं था। इजीली ये इट इज़ ईजी
सो टेलर एंड कलीग्स जो थे उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स वैसे ही परफॉर्म किए थे ऑन वीसिया फाबा विच जो कि बीन्स जिसको बोलते हैं। इसमें रेडियो एक्टिव थाइमिडीन यूज़ किया था जिसमें न्यूली सिंथेसाइज डीएनए हमें क्रोमोसोम्स में पाया गया। इससे हमें ये पता चला कि डीएनए जो क्रोमोसोम्स में है वो रेप्लिकेट करता है सेमी कंजर्वेटिवली। ओके, जो मशीनरी है एंजाइम के रेप्लिकेशन की, मतलब रेप्लिकेशन किन किन चीज़ों की वजह से होता है, उनमें कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं। तो एक तो होता है वहाँ पे ORI रीजन, दैट इज़ द ओरिजिन। ओके, जहाँ से ओरिजिन मतलब जहाँ से रेप्लिकेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है। एंड द यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन जो है यानी कि एक ओरिजिन जो है उसको हम बोलते हैं रेप्लिकॉन। ओके, अब रेप्लिकेशन के टाइम पे दो स्ट्रैंड्स होती है अनविंड। अनविंड मतलब होती है खोलना उनको, उनका जैसे राइट हैंडेड फैशन में कॉइल्ड होती है ना, तो अब हम उनकी कॉइलिंग को खोलते हैं। ओके, और खोलेंगे कैसे? दोनों हमारे बेस पेयर्स जुड़े होंगे। दोनों बेस पेयर्स किससे जुड़े होते थे? हाइड्रोजन बॉन्ड से। अब उनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स को हम ब्रेक करेंगे, वो भी एक एंजाइम के प्रेजेंस में, जो कि ये जो एंजाइम है हमारा उसको हम हेलिकेज बोलते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ता है और अनविंडिंग करता है हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन की। ओके, अब जो अनविंडिंग होगी डीएनए की मॉलिक्यूल की, एक पॉइंट पे वो एक वाई शेप का मॉलिक्यूल बना लेगी। अब ये जो वाई शेप का मॉलिक्यूल बनेगा ना, नीचे की स्ट्रैंड हमारी जो है अभी भी अनकॉइल्ड नहीं हो पाई है, बट ऊपर की जो चेन है वो हमारी अनविंड हो चुकी है, तो एक वाई शेप का मॉलिक्यूल हमारा फॉर्म हो जाता है। इस वाई शेप के मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। यू कैन इजीली सी इट हियर, दिस वन इज द रेप्लिकेशन फॉर्क। ओके, ये वाटसन क्रिक का सेमी कंजर्वेटिव डीएनए का मॉडल था, इसको रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। यहाँ पे राइट हैंड साइड में टेम्पलेट स्टैंड होती है जो कि पेरेंटल होती है, जैसे हमने पढ़ा था। ये डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस करती है, और वहीं पे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो ये कॉन्टिन्यूस होती है जो कि नई सिंथेसाइज्ड होती है। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से ये फ्लो होता है। नाउ सेपरेटेड स्ट्रैंड्स किस तरीके से एक्ट करती हैं नई स्ट्रैंड्स के साथ। तो जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो हमेशा किस डायरेक्शन में होता है? 5 to 3 डायरेक्शन में। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, इट इज आस्क्ड मेनी टाइम्स इन द एग्जामिनेशन दैट डीएनए रेप्लिकेशन किस डायरेक्शन में होता है। इट इज ऑलवेज फ्रॉम 5 to 3 डायरेक्शन, नॉट फ्रॉम 3 to 5 डायरेक्शन। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम DATP या DGTP, DCTP और DTTP भी बोलते हैं, ये एक सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करता है और एक एनर्जी प्रोवाइड कराता है पॉलीमराइजेशन के लिए। फर्स्टली एक छोटा सा RNA प्राइमर लेके हम इसको हम सिंथेसाइज करेंगे एंजाइम प्राइमेज की फॉर्म में। एक नया प्राइमर बनता ही प्राइमेज के प्रेजेंस में है। तो ये जो प्रेजेंस है एंजाइम का यहाँ पे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन होते हैं विद वन अनदर। जब न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन होंगे स्पेशली, तभी हमारा एक डीएनए का पूरा मॉलिक्यूल बन पाएगा, तभी एक नई चेन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन हो पाएगा। तो ड्यूरिंग रेप्लिकेशन के टाइम पे एक चेन जो फॉर्म होती है वो हमेशा कॉन्टिन्यूस रहती है 5 to 3 डायरेक्शन में, क्योंकि वहीं से हमारा रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। इस स्ट्रैंड को जहाँ पे जो हमारा न्यूली सिंथेसाइज डीएनए होती है या जो कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड होती है 5 to 3 डायरेक्शन में, उसको हमेशा हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। ओके, और जो अदर नेम होता है जिसमें स्मॉल छोटे छोटे स्ट्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं? छोटे छोटे से फ्रेगमेंट्स होते हैं जो कि न्यूली सिंथेसाइज डीएनए को बनाते हैं। वहाँ पे डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस होती है और ये 5 to 3 डायरेक्शन होती है। ओके, अब इसको बोलते हैं जो हमें नई बनती है, ये डीएनए लाइगेज से जोड़े जाते हैं। जितने भी फ्रेगमेंट्स हैं, हमने आगे हम पढ़ेंगे पीसीआर में कि वहाँ पे जितने भी फ्रेगमेंट्स है डीएनए के हमारे, वो हम ज्वाइन करते हैं एक एंजाइम से जिसको हम डीएनए लाइगेज बोलते हैं, और इस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। ओके, तो पहली जो हमारी मेन जहाँ पे सिंथेसिस हो रही है डीएनए के नए स्ट्रैंड की, उसको हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, जो कि मेन पेरेंटल डीएनए की स्ट्रैंड है। और जो दूसरी वाली है जहाँ पे नई सिंथेसाइज हुई है, उसको हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, क्योंकि वहाँ पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जितने भी हैं वो जॉइंट रहते हैं डीएनए लाइगेज की हेल्प से। ओके, नाउ अगर कोई भी बीच में रॉन्ग बेस जो है इंट्रोड्यूस हो गया, तो वहाँ पे प्रूफ रीडिंग हो जाती है, ताकि वो फिर से देख के सही करते हैं उसको, फिर से वो करेक्शन परफॉर्म हो जाता है। इकोलाई कंप्लीट, इकोलाई जो है वो अपने रेप्लिकेशन को 18 मिनट्स के अंदर परफॉर्म कर लेती है। वहाँ पे 2000 बेस पे पर सेकंड में जुड़ते हैं। यूकैरियोट्स जो है इसमें रेप्लिकेशन को करने में एस फेज में होता है, ये जो हमारा सिंथेसिस फेज में होता है वहाँ पे रेप्लिकेशन होता है। ये भी पूछा काफ़ी बार गया है कि मेजरली डीएनए रेप्लिकेशन होता कहाँ है? रेप्लिकेशन होगा कब? जब पेरेंटल इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाएगी। सो इट ऑलवेज परफॉर्म्स इन द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। और अगर कहीं पे भी फेलियर हो गया सेल डिवीजन में, मतलब सेल हमारा डिवाइड ईजिली नहीं कर पाया या प्रॉपरली नहीं कर पाया, तो वहाँ पे पॉलीप्लॉइडी हो जाती है, जो विच इज ऑल्सो अ म्यूटेशन। वहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स पहुँच जाते हैं, तो जिस वजह से एबनॉर्मेलिटी अकर करती है किसी भी ह्यूमन बीइंग में। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल।